वेलकम बैक टू बस नंबर 11 एंड मैं आपका होस्ट मीनाक। और अभी हम जा रहे हैं अपनी जो होम टाउन है कोलकाता से ऑलमोस्ट 88 किलोमीटर अवे है एंड आई एम गोइंग बाय माय ओन कार। और ये जर्नी पूरी करने में मुझे लगभग कोई 2.5 से 3 घंटे के आसपास लगेगी। ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि सिटी ट्रैफिक से निकलते ही टाइम लग जाएगी और टाइम है अभी 8:40, तो थोड़ा लेट हो चुके हैं। और क्या मतलब वहाँ जाके देखते हैं कि मतलब कौन सी जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जगह है जो कि देखने लायक है। इसके अलावा मैं वहाँ पे लोकल लोगों के साथ भी बात करूंगा और देखते हैं कि कुछ अनकॉमन जगह जो कि ज़्यादा टूरिस्ट नहीं जाते हैं ये भी कवर करने की कोशिश करूंगा। इफ दैट हैपेंस डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ब्रिंग दैट इन फ्रंट ऑफ यू। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन आवर जर्नी। स्टे ट्यून्ड। ट्रैफिक था क्योंकि घर से निकलने में थोड़ी लेट हो गई थी सुबह, और फिर सिटी लिमिट से निकलने में बहुत टाइम लग गया था। तो अभी जस्ट पहुंचा हूँ खड़गपुर और ओडोमीटर में जस्ट इट इज शोइंग 172.6 किलोमीटर। तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी 16 से 20 किलोमीटर के बीच में है हमारा डेस्टिनेशन। तो वैसे तो बोल के रखे हैं नंदिनी गेस्ट हाउस में, जो होम स्टे में जा रहा हूँ मैं, तो उधर लंच बोल के रखे हैं। तो अभी जाके पहुँचने के बाद फ्रेशन अप होके फिर लंच लेके फिर हम बाहर निकलेंगे। Hey viewers, welcome back. So just reached Jhargram and जैसे आप लोगों को बताया कि I am staying in a homestay in Jhargram which turned out to be amazing. Just look at this. I mean, it's just in the middle of a forest in Jhargram. और इस रास्ते से हम आए, this is the road. और अभी दिखाते हैं the building which I am staying in. This is this building. Just look at this. It's a beautiful building. हमको हमारा होस्ट बता रहे थे like it's almost 126 years old building. और अब से कुछ ही देर में आप लोगों को मिलाते हैं अपने होस्ट के साथ। तो हाय फ्रेंड्स, তো যেটা আমি বলছিলাম আমি এখন পৌঁছে গেছি হচ্ছে কি ঝাড়গ্রামে নন্দিনী হোমস্টেতে। আর আমার সাথে আছে নন্দিনী হোমস্টের যে ওনার মিস্টার সত্যেন ঘোষ। আর উনি আমাদেরকে হোস্ট করছেন, ভীষণই মানে ওয়ার্ম ওয়েলকাম জানিয়েছেন আমাদেরকে। এবং যেটা আমি প্রথমে নেটে দেখে এসেছিলাম, ভেবেছিলাম রাস্তা ধরে, কিন্তু এত সুন্দর লোকেশনটা, মানে হাইলি রেকমেন্ড করবে, প্লিজ এখানে আসুন। সত্যেনবাবু, আপনি যদি এই প্রপার্টি সম্বন্ধে কিছু বলেন। এই প্রপার্টি একজন ব্রিটিশ আর্নল্ড বারবারা বলে, আচ্ছা, এই এলাকাটা এই গড় শালবনি, এটা ছিল একটা ব্রিটিশ কলোনি ছিল। এরকম 5-6টা বাড়ি এরকম রয়েছে পুরনো। এটা সম্ভবত 100 থেকে 120 বছরের মধ্যে এই বাড়িগুলো ছিল। সবগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। এটাই শুধু জাস্ট যাদেরকে কেয়ারটেকার দিয়েছিলেন, আচ্ছা, তাদের কাছ থেকে আমি এটা মানে পারচেজ করি, এটা কিনে নেই প্রপার্টিটা। আচ্ছা, দিয়ে সেখানে এই স্কুল এটা থেকে রেনোভেট করে এখন ট্যুরিজম থেকে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম এরা বলার ফলে গত
জানুয়ারি থেকে এটা হয়, মানে এই হোমস্টেটা চালু করি, এবং এটা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড একটা গোল্ড ক্যাটাগরি হোমস্টে হিসেবে এটা স্বীকৃত হয়েছে আর কি। আচ্ছা, তো এটা এখন তো গভর্নমেন্টের তরফ থেকে এটা হোমস্টে করা হয়েছে। কটা রুম আছে আপনার এখানে? এখানে 3খানা রুম আছে, আচ্ছা, দুটো ডবল বেড, একটা ট্রিপল বেড, একটা ট্রিপল রুম আছে। আর ট্যারিফ কিরকম আপনাদের? ট্যারিফ হচ্ছে ডবল বেড যেটা 1700 করে, আর একটা 1900 যেটা হচ্ছে ট্রিপল বেড যেটা 1900। ট্রিপল বেডটা 1900 টাকা, With মানে GST, উইথ জিএসটি ইনক্লুডিং ট্যাক্সেস। হ্যাঁ। এটা কি আপনার সিজন নন সিজনের কোনো ব্যাপার আছে নাকি মানে না না, ট্যারিফটা থ্রু আউট একই থাকবে? থ্রু আউট একই থাকবে। আচ্ছা, ট্যারিফে খাওয়া দাওয়া কিছু ইনক্লুডেড? খাওয়া দাওয়ার ট্যারিফে কোনো ইনক্লুডেড নয়, খাওয়া দাওয়া আলাদা? খাওয়া দাওয়াটা আলাদা আমাদের আছে, খাওয়া দাওয়ার এটা মানে পরে এটা চার্জ করা হয়। আচ্ছা, তো আপনাদের বলে দিই, আমিও ইন্টারনেটেই নাম্বারটা খুঁজে পাই, তখন ওনার সাথে যোগাযোগ করি। তো উনি আমাকে মানে অ্যাকাউন্ট ডিটেলস এগুলো সব পাঠিয়ে দিয়েছিল, দিয়ে তারপরে আমি মানে অনলাইন টাকা ট্রান্সফার করে একটা অ্যাডভান্স অ্যামাউন্ট, টোকেন অ্যামাউন্ট দিয়ে তারপরে রুম কনফার্মেশন করে তারপর এখানে এসেছি। আর আসার খুবই সোজা, জাস্ট ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে খড়গপুর থেকে সোজা, যেটা বম্বে রোড আর কি, বম্বে রোড দিকে যাবেন, ঝাড়গ্রামের দিকে এন্ট্রি নেবেন, লোদাশুলি থেকে ডান দিক ঘুরবেন, ঘুরে কিছুটা এগোলেই আপনি দেখতে পাবেন সাইনবোর্ড আছে, 3 কিলোমিটার আসার পরেই মানে হ্যাঁ, তারপরে আপনি পেয়ে যাবেন দেখবেন নন্দিনী হোমস্টে লেখাই আছে। বেশ একটা জঙ্গলের মধ্যে যে রাস্তা, খুব সুন্দর। আর সব থেকে ভালো জিনিস হচ্ছে এখানে ছাদটা অ্যাক্সেস করা যাবে, সন্ধ্যেবেলা ডেফিনেটলি আপনাদের দেখাবো ছাদটা কেমন। আর কি, ব্যাস এখন একটু পরে আমরা খেতে বসবো, খেয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়বো ঝাড়গ্রাম দেখতে থাকবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। I am here at a village near Jhargram that is called Lal Bazar or Khwabgram. This village has a unique taste of, the local people. They're all artists, yes. Just look at the structures. These are made out of plant roots and they sell it. And they have some beautiful paintings on their house wall made by them themselves. And with me, sir, अपना नाम था मिस्टर कोमल महातो जी है यहाँ पे। तो सब यहाँ पे जितना, अच्छा, जो कलर यूज होता है दीवार में, तो कौन से कलर? नेचुरल कलर, ये कलर है वो जो पानी की जो कलर होता है, पानी का जो वाटर कलर यूज होता है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि कलर कैसा, मतलब पेंटिंग कैसा है। तो पेंटिंग का मतलब हम लोग आते वक्त देख रहे थे। और एक चीज, एक यूनिक चीज देखा आपका गांव में जब हम अंदर आ रहे थे, कि जो बैम्बू का जो ट्रीज था, बांस गाछ, ऐसे बेंड करके गेट बनाया, क्या आप लोग बनाए? इट्स नेचुरल फॉर्मेशन? नेचुरल अब से हो गया बहुत अच्छा है, वो भी दिखाता है। चलिए, ये जितना भी आर्टिफैक्ट्स है, मतलब जो रूट्स से बनाया गया है स्ट्रक्चर्स, मीट द आर्टिस्ट। अपना नाम था? षष्ठीचरण आहिर। मिस्टर षष्ठीचरण आहिर। वेरी मीट द यंग आर्टिस्ट। কি নাম কি? কিরণ আহির। কিরণ আহির। বাবা ছিল? ওইটা বাবা। এটাই তারপরে পুরানো হবে। মাটিতে কি রং দেওয়া নাকি না মাটিটা এরকমই? তাও পোড়ানো হবে, তারপরে রং দেবেন। वेल व्यूअर्स, दिस इज लाल बाजार या फिर ख्वाब गांव।
जो कि झारग्राम के जस्ट बगल में ही है। मैं कुछ लोकल लोगों से भी पूछा और मेरे कुछ दोस्त भी है झारग्राम में, उनसे भी पूछा, उनको भी पता नहीं है इस गांव के बारे में। सो इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू फाइंड आउट एग्जैक्ट लोकेशन। तो लोकेशन डिटेल्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस गांव में ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स आए, तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। और जितने विजिटर्स आएंगे इस गांव का जो डेवलपमेंट है, यू कैन अंडरस्टैंड दे आर ऑल आर्टिस्ट एंड दे आर वेरी रियली नाइस पीपल। तो इस गांव का भी अगर कुछ डेवलपमेंट हो तो अच्छा ही है, क्योंकि दे शुड ऑल्सो हैव सम मोटिवेशन टू डू सम दिस काइंड ऑफ वंडरफुल वर्क। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए दे चार्ज 500 रुपीज़ एंड 1000 रुपीज़ करते हैं वीडियोग्राफी के लिए। और ये जितना भी जो फंड इकट्ठा होता है इसको ये लोग अपने गांव के डेवलपमेंट के लिए काम पे लगाता है। और चीज़ मैंने नोटिस किया, यहाँ पे मिट्टी का जो कलर है यहाँ पे अलग अलग है, तो उसी मिट्टी से डिफरेंट फॉर्म का जो फिगर्स बना रहे हैं वो लोग। और उसको बनाने के बाद जो गिल्ली होती है, गिल्ली मिट्टी से उसको बनाने के बाद उसमें उसको आग के भट्टी में डाल देते हैं और भट्टी से निकलने के बाद उसको कलर करने के बाद फिनिश प्रोडक्ट बनता है। तो आगे हम जा रहे हैं, एक काउंटर है जहाँ पे ये प्रोडक्ट वो लोग सेल करते हैं टू ऑल द विजिटर्स हु कम हियर इन दिस विलेज। So once again, I would request my viewers to please come here in this beautiful village. You will absolutely fall in love with this place. নাম বলাবে মাথায় হাত দিয়ে অত মানে দুঃখের কিচ্ছু নেই। তোর নাম জিজ্ঞেস করা হয়েছে, এত দুঃখ কিসের তোর? হ্যাঁ আরে সব টাকা শেষ হয়ে গেল আমার, আমার কি হবে? तो जनाब ये है ख्वाब गांव। और कैसा लगा आप लोगों को ऐसा गांव? मतलब अपने इंडिया में ही है और कलकत्ता से जस्ट 180 किलोमीटर दूर है ये जगह। ब्यूटीफुल इज़न्ट इट? तो बताइएगा कमेंट में कैसा लगा। और एक चीज़ आपको दिखाते हैं, इस गांव के बाहर का जो जगह है, एक जो बैम्बू का जो ट्री है वो बेंड हो गया, ऐसा हो गया कि एक डिज़ाइनर गेट बन गया। तो चलिए वो दिखाते हैं आप लोगों को। तो हम आ गए हैं वापस अभी अपने होम स्टे पे। एक तरफ आप देखिए
मूनराइज हो रहा है और इस तरफ हो रहा है सनसेट। तो इसी के साथ आज का दिन ख़त्म हो रहा है। उसके बाद ये रूफटॉप में बैठ के आई हैड माई इवनिंग स्नैक्स एंड व्हाट अ वे टू एंड द डे।